الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلی جمعہ معراج کا واقعہ بتایا جا رہا تھا۔ اس میں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع کیا تو راستے میں کچھ مناظر جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا وہ چیزیں دکھائی گئی، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی تھی۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے کہ آگے کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ قوم کو لوگوں کی زبانوں کو قینچیوں سے، لوہے کی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے عمل واعظوں کا انجام ہے، یعنی ایک تو عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، خود عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی اور آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے اندر سے ایک بڑا بیل کی شکل کا ایک چیز باہر آیا۔ آنے کے بعد پھر وہ چھوٹے پتھر میں دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ گھس نہیں پاتا ہے، بار بار گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کیا ہے، گھس نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں، پھینکو باتیں، جیسے کہ ہمارے زبان میں بولنا ہے اوور باتیں کرتے نا، اسے بولتے ہیں، تو یا پھینکو باتیں جو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ منہ چھوٹا ہے لیکن بڑی بڑی باتیں بول کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بات واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، تو ایسی پھینکو باتیں یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے، تو ان لوگوں کا یہ ماجرا ہے۔ تو اس کے بعد آگے بڑھے تو آواز سنائی دی اور ایک خوشبو سونگھنے کو ملا، یعنی ایک اچھی خوشبو آئی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آوازیں سنائی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا آواز ہے، یہ کیا خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، اور یہ جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میرے اوپر بالائی حصے میں، اوپر کے حصے میں کیا ہے، موٹے ریشم کے کپڑے بھی بچھا دیے گئے، باریک ریشم کے کپڑے بھی بچھا دیے گئے، اور اچھے پیالے، سونے چاندی کے پیالے تیار ہو گئے، پینے کے لیے شہد، دودھ، شراب، جو لذیذ شراب بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ریڈی تیار ہیں۔ تو اے اللہ میرے اندر جنت میں داخل ہونے والوں کو عطا فرما، تاکہ میرے اندر وہ لوگ آئے اور میری ان چیزوں کو استعمال کرے، سونے چاندی کے برتن کو استعمال کرے، اور پکڑنے کے کپوں کو استعمال کرے، موتی جواہرات جو میرے دیوار میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو استعمال کرے، لہٰذا جنت والوں کو میرے اندر داخل فرما۔ تو یہ جنت اس طرح اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرے جو انسان اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے
किसी को शरीक नहीं ठहराता, ऐसे लोगों को तेरे अंदर मैं दाखिल करूंगा। जो इंसान मुझसे डरता है, ऐसे लोगों को, जो इंसान अल्लाह ताला का खौफ करता है, अल्लाह ताला से डरता है, ऐसे लोगों को तेरे अंदर दाखिल करूंगा। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सदका खैरात देता है, उन लोगों को मैं तेरे अंदर में दाखिल करूंगा। और जो इंसान सब्र से काम लेता है, ऐसे लोगों को तेरे अंदर मैं दाखिल करूंगा। इस तरह अल्लाह ताला ने ये बात कही तो जन्नत ने कहा कि अल्लाह मैं राजी हूँ, अल्लाह मैं राजी हूँ। ये जन्नत जब ये जवाब दी, अल्लाह ताला हमें भी जन्नत अता फरमाए। तो उसके बाद जब अल्लाह के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या सुनाया, उसके बाद फिर और आगे बढ़े तो एक जगह एक दूसरी खुशबू महसूस होने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरी खुशबू आने लगी। तो फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये क्या मामला है। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फिरौन के बांदी है, उनके बच्चियों की कंघा किया करती थी, जिसे हम लोग कुंगी बोलते ना, वो कुंगी करती थी, तो वो बांदी है, उसकी कब्र है यहाँ पर। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बतलाना शुरू किया कि उसका वाक़या ये है कि एक मर्तबा फिरौन के बेटी को वो औरत क्या है कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए क्या है वो कंघी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह कहकर उठाकर ले ली। तो फिरौन की बेटी फौरन कहने लगी, क्या तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानती जो दूसरे को खुदा मानती हो? तो उन्होंने कहा कि वो तो तेरा बाप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो उसको मैं क्यों खुदा मानूं? ये बात कही तो फौरन बेटी भाग कर जाकर फिरौन को बता दी, बाप को बता दी। तो फिरौन ने उसको जमा किया, उसके और उसके बच्चों को जमा किया। उसके बाद पूछा, क्या तुम मुझे खुदा नहीं मानती हो? तो उन्होंने कहा, औरत ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। ये बात उसने कही। तो उसने गुस्से में आकर क्या किया, एक कढ़ाई रेडी किया और कढ़ाई के अंदर आग बहुत सारा तेल डालने का हुक्म दिया और उसको खूब औटाने का हुक्म दिया, यानी खूब गर्म करने का हुक्म दिया तेल को। उसके बाद एक एक बच्चे को उसके लाकर डालते रहे। तो औरत क्या है मजबूती से खड़ी रही, लेकिन जब छोटे बच्चा, जो दूध पीता बच्चा जो उसके गोद में था, उसको डालने आगे बढ़ते रहे, तो वो औरत को एकदम धचका लगने लगा, यानी पीछे हटने की बारी आने लगी, पीछे हटने के करीब होने लगी। तो फौरन अल्लाह ताला ने उस छोटी सी बच्ची को बात करने का मौका दिया, दूध पीती सो बच्ची को। तो वो बात करने लगी कि ए मेरी माँ, ये दुनिया की तकलीफ थोड़ी देर की तकलीफ है, बर्दाश्त कर ले, आखिरत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, लिहाजा इस दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा। ये बात उसने कही। तो फौरन माँ भी उसके अंदर कूद गई और बच्चे भी उसके अंदर जलकर खत्म हो गए। इस तरह तमाम लोगों को उसके अंदर डाला गया। लेकिन वह औरत क्या है मरने से पहले एक बात फिरौन को बोल कर गई कि अगर मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन क्या है मेरे और मेरे बच्चों के लाश जो है एक जगह दफन कर दो, ये मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है। उस बांदी ने कहा। तो फिरौन ने कहा, ये तो हमारा हक है, हम जरूर तुम्हारा इसी तरह करेंगे। लिहाजा उसको एक जगह जमा करके उन लोगों को एक जगह दफन कर दिया गया। तो इस तरह उसका वाकया हुआ। तो उस औरत ने अल्लाह पर इतना तवक्कुल किया था कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसके कब्र से जन्नत की खुशबू को महका रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशबू सूंघी थी। तो ये वो तमाम वाक़या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एकदम गंदी बदबू आने लगी, कुछ फरियाद करने की भी आवाज आने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, ये गंदी खुबास कहाँ से आ रही है और बदबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दोज़ख है, जहन्नम है, इसके अंदर से बदबू आ रही है और ये अल्लाह ताला से फरियाद कर रही है कि अल्लाह मेरे अंदर आग भी जलकर रेडी है और मेरे अंदर सांप बिच्छू भी तैयार है और खाने पीने के लिए पीप वगैरह खून वगैरह ये भी तैयार है, सब कुछ तैयार है और मेरे अंदर की चीजें भी जलने के लिए जल रही है, यानी इतना मेरे अंदर आग भड़क गया है कि मेरे अंदर की चीजें भी जल रही है, इतना ज्यादा आग भड़क गया है। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा
दोजख से कहा कि मैं तुम्हारे अंदर नाफरमानों को दाखिल करूंगा, जो इंसान मुझसे शिरक करेगा उसको मैं दाखिल करूंगा, जो इंसान गुनहगार होगा, नाफरमानी करेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, ऐसे लोगों को तेरे अंदर दाखिल करूंगा, जो इंसान मुशरिक होगा ऐसे लोगों को तेरे अंदर दाखिल करूंगा। इस तरह बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने कही। तो दोजख ने कहा कि अल्लाह मैं राजी हूँ, यानी ऐसे नाफरमानों को लेने के लिए मैं राजी। जब दोजख ने ये कही तो ये बातें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक जमात आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार पुकार कर बुला रही थी कि आप हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ आइए। तो अल्लाह के नबी कुछ जवाब नहीं दिए और आगे बढ़े। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से एक दूसरी जमात आपको बुला रही थी, तो उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। फिर और आगे बढ़े तो वहां पर एक बूढ़ी औरत आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी, तो उसका भी जवाब अल्लाह के नबी ने नहीं दिया। फिर और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा कि कौन लोग हैं बार बार मुझे बुला रहे हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले जो ग्रुप थी वो यहूदियों की ग्रुप थी जो आपको अपनी तरफ बुला रही है। अगर आप उनकी तरफ चले जाते तो आपकी उम्मत भी यहूदी बन जाती। और दूसरी ग्रुप जो बुला रही थी वो ईसाइयों की ग्रुप थी, वो आपको अपनी तरफ बुला रही है। अगर आप चले जाते तो आपकी उम्मत भी ईसाइयों में जमा हो जाती। अगर तीसरी जो ग्रुप थी वो क्या है, तीसरी जो बूढ़ी थी वो क्या है, दुनिया थी। अगर आप उसकी तरफ जाते तो क्या है, आपकी उम्मत भी आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देने वाले बन जाती, यानी दुनिया को फर्स्ट पोजीशन देगी, आखिरत को लास्ट पोजीशन देगी, उसको तरजीह देने वाली बन जाएगी। आपने इन तीनों की तरफ तवज्जो नहीं दिया तो आपकी उम्मत सही सलामत रही है। इस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। उसके बाद और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद देखा कि एक बड़ा दस्तरखान सजाया गया है। एक बड़ा दस्तरखान है जिसके अंदर हर किस्म के खाने हैं, अच्छे अच्छे लजीज खाने उसके अंदर रखे गए हैं। तो उसके अंदर लेकिन बाजू में एक खराब गोश्त, सड़ा हुआ गोश्त ऐसा भी पड़ा हुआ था। लोग क्या है, वो अच्छे खाने और अच्छे लजीज खानों को छोड़कर वो सड़े हुए गोश्त खा रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अच्छे खानों की तरफ कम तवज्जो देते हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये क्या मामला है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हलाल और हराम की मिसाल है। इंसान के पास हलाल तरीका कितना भी हो लेकिन वो इंसान क्या है, हराम तरीके ही की तरफ जाता है। जिस तरह ये लोग सड़े गोश्त की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसी तरह इंसान को हलाल तरीके बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी क्या है, हलाल को छोड़कर हराम की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। तो ये उसकी मिसाल है। फिर उसके बाद और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वहां पर देखा कि कुछ लोग क्या है, उनके ऊंटों की तरह उनके होठ है और आग खाने वाले हैं, आग खा रहे हैं, यानी उनके होठ जो है ऊंट के होठ की तरह मोटे मोटे, एकदम मोटे मोटे जबड़े हैं और वो क्या है, आग को चर रहे हैं, आग को खा रहे हैं। तो इस तरह का मामला था। और वो आग क्या है, मुंह से खा रहे हैं, पैखाने के रास्ते से निकल रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मामला है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये यतीमों का माल खा रहे हैं, खाने वाले, यानी दुनिया के अंदर जिसका बाप का साया बचपन में नाबालिग होने से पहले ही खत्म होता है तो उस बच्चे को बालिग होने तक यतीम कहा जाता है। तो इसका माल आस्ती जो है वो लोग हड़प लेते हैं, उसका जबरदस्ती ले लेते हैं। ले लेने की वजह से आज उनको ये सजा मिल रही है। तो यतीमों का माल खाने की वजह से अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन क्या है, उनके होठ ऊंटों की तरह बन जाएगी, ऊंट की होठ की तरह बन जाएगी और वो मुंह से आग खाएंगे, पैखाने के रास्ते से निकलेगा। इस तरह की सजा उनके लिए तैयार की गई। उसके बाद फिर और आगे बढ़े। वहां पर जाकर देखा कि एक ग्रुप था, एक जमात थी जिनके पेट क्या है, बड़े बड़े हैं और उसके पेट क्या है, बड़े बड़े हुए हैं और वो खड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी लुढ़क जाते हैं। बड़े बड़े पेट वाले फिर खड़ने की कोशिश करते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। इस तरह का मामला हो रहा है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूदखोर हैं, वड्डी खाने वाले हैं। जिन लोगों के साथ ये मामला हो रहा है कि उनके पेट सूद खाने की वजह से बड़े बड़े हो गए। बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है कि उनके पेट इतने बड़े होते हैं कि एक बड़ी हंडी की तरह होते हैं,
اور اس کے اندر सांप बिच्छुओं को भरा गया है, उसके अंदर से वो सांप बिच्छू भी बाहर झांकने की तरह होते हैं। तो बाज़ रिवायतों के अंदर ये वाक़या भी मिलता है। उसके दूसरी एक और रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक नहर है, वो नहर के अंदर एक आदमी किनारे पर खड़ा है और एक आदमी नहर के अंदर तैर रहा है। तो नहर के अंदर तैर रहा है तो वो किनारे आता है, किनारे आते ही जो आदमी किनारे पर खड़ा है वो आदमी पत्थर रख के उसके मुंह पे मारता है, तो फिर जाकर दरमियान में नहर के बीच में पड़ जाता है। फिर तैरते हुए आता है, फिर मारता है तो फिर जाकर बीच में पड़ जाता है। इस तरह का मामला होता था। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि कौन लोग हैं? तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूदखोर हो, तो चाहे वो अजाब भी हो चाहे ये अजाब भी हो, सूद खाने वालों के साथ इस तरह का अजाब होने वाला है। और एक तीसरी और एक वाक़ई रिवायत है, उसके अंदर देखा कि नहर के अंदर है, नहर के अंदर क्या है, वो आदमी पत्थर खाने वाला बनता है। यानी नहर के अंदर जो आदमी तैर रहा है वो पत्थर खा रहा है, जिस तरह खाना खाते हैं इस तरह वो पत्थर खा रहा है। तो ये तीसरी रिवायत ये भी मिलती है। तो ये भी क्या है, सूदखोरों की रिवायत है। सूदखोर जो इंसान सूद खाता है उस तरह उसके लिए जहन्नम के अंदर ये मामला तैयार किया गया है। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद देखा कि बास औरतों को क्या है, पिस्तानों के जरिए लटकाया गया है। पिस्तान बोले तो ऊपर के छाती को कहा जाता है, तो उसके जरिए औरत को लटकाया गया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि कौन लोग हैं? तो अल्लाह के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के जिनाकार औरतें हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का मामला हो रहा है। और दूसरे देखा कि बाज लोग क्या है, औरत को क्या है उल्टा लटकाया हुआ है, औरत हो या मर्द, इंसान को क्या है उल्टा लटका कर है। और उसके बाद क्या है, उसके पहलू का गोश्त बोले तो ये फसलियों के हिस्से के पास का या हाथ के हिस्से के पास के हिस्से को गोश्त काटा जा रहा है, काट कर उसी को खिलाया जा रहा है। जिस इंसान का गोश्त काटते हैं उसी को खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये चुगलखोर लोग हैं, यानी दूसरों की चुगली करते हैं। हमारे लफ्जों में बोलना है तो चाड़ा बोल लेते हैं, एक दूसरे के बारे में चाड़ा बोलते हैं, जिसकी वजह से ये सजा उन लोगों को हो रही है। तो ये सजा उन लोगों को हुआ। तो और आगे उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद वहां पर देखा कि बहुत सारे अंबिया की जमातें वहां पर मौजूद थी। अंबिया अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया जो दुनिया के अंदर आए, बहुत सारे अंबिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वहां पर किसी नबी के साथ चंद लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी के साथ 40-50, किसी के पास 100, किसी के पास 7 हजारों, किसी के पास 7 लाखों, इस तरह की जमातें खड़ी हुई थी। उसमें सबसे टॉप पोजीशन में मूसा अलैहिस्सलाम की जमात थी, जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की जमात बहुत बड़ी थी। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अंबिया की जमात है, इससे पहले की जो उम्मतें हैं वो लोग हैं। किसी नबी के साथ किसी के नबी के साथ 10, किसी के 40, किसी के 1000, किसी के 500, इस तरह के लोग खड़े हुए हैं। तो ये इससे पहले नबियों की जमातें हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि मेरी उम्मत कहाँ है? तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऊपर देखिए। तो आप देखा गया तो दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खड़ी हुई नजर आई। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें से ये नहीं बल्कि इसके अलावा और भी 70,000 लोग हैं जो बेहिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, वो लोग भी हैं। इस तरह ये लोग, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मतों को दिखलाया गया। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े। तो उसके बाद इस वाक़े के अंदर अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि वो 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे वो कौन लोग हैं, वो कैसे लोग उसमें होंगे? तो नंबर 1 ये है कि वो आग के जरिए इलाज नहीं करते, लोहे को जलाकर इलाज नहीं करते। जैसे इससे पहले चंद साल पहले क्या है, पचकरला जब होते थे, जॉन्टिस जब होता था तो उसको क्या है जलाकर इलाज किया जाता था। हाथ को एक गोल निशान का लगा देते थे, जलाकर इलाज करते थे जॉन्टिस का। इस तरह इलाज एक किस्म का इलाज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बगैर हिसाब के दाखिल होने वाले हैं वो
क्या है, आग से जरिए लोहे के जरिए इलाज करने वाले नहीं है, लोहे को जलाकर इलाज करने वाले नहीं है। नंबर 2 क्या है, नाजायज झाड़ फूक करने वाले नहीं। नाजायज झाड़ फूक मतलब जैसे कि आजकल लोग क्या है, किसे कुछ पढ़ना नहीं आता उन भी आमिल बना बैठा है, किसे कुछ लिखना नहीं आता उन भी आमिल पढ़ता है, तावीज़ा डाल लेते बैठ जाता है, किसे जैसे चाहे वो मनमानी वो करने लगते हैं। ये जितने भी हैं नाजायज है। 90% जो आमिल है दुनिया के अंदर आजकल के 90% तो किसी को लिखना पढ़ना भी सही माने में नहीं आता और उसके बारे में कुछ इल्म भी उन लोगों को नहीं होता। बस लिखी लिखाए प्रिंटेड तावीज़ें मिलती है, उसको डालकर वो अपना जिंदगी बसर करते रहते हैं। तो वो लोग तो जो नाजायज तरीके से तावीज़ करना झाड़ फूक करने वाले नहीं होंगे। नंबर 3 अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होंगे। यानी ये 70,000 की जो जमात है ये 3 काम वो लोग नहीं करते। ये क्या है, नाजायज तौर पर झाड़ फूक नहीं करते। दूसरा क्या है, लोहे को आग के जलाकर इलाज नहीं करते। नंबर 3 क्या है, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करते हैं। ये 70,000 लोग ये हैं। उसके यहाँ तक एक मरहला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का खत्म होता है। उसके बाद फिर दूसरा मरहला शुरू होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के अंदर तशरीफ लाते हैं। बैतुल मुक़द्दस के अंदर जब तशरीफ लाने के बाद अपने बुराक को एक गोल लोहे का एक था, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को बांध दिया। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला, अब यहाँ पर देखें बुराक तो अल्लाह ताला का जानवर है, ऐसा नहीं छोड़ दिया कि अल्लाह का जानवर ना अल्लाह हिफाजत करता, ऐसा छता ले कहाँ जाता, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जानवर के साथ जिस तरह मामला करना है उसी तरह किया है। अगर उसको बांध कर रखोगे तो रहेगा, नहीं छोड़ देकर अल्लाह के ऊपर भरोसा करे तो बस बोले तो नहीं चलेगा। असबाब भी इंसान को इख्तियार करनी है, दवा भी इंसान को इख्तियार करनी है। नहीं अल्लाह शिफा दे डालता, खाली घर में बैठे तो बस नहीं, काम नहीं चलेगा, बल्कि दवा इख्तियार करना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस दवा के अंदर ऐसा असर पैदा करने वाली जात अल्लाह ताला की है। दवा भी इस्तेमाल करो, साथ ही साथ अल्लाह पर भरोसा भी करो, दुआ भी करो, दोनों करेंगे तो तब जाकर ईमान बनेगा। ऐसा नहीं सिर्फ घर में बैठ को दवा दारू कुछ भी नहीं, बस अल्लाह पर भरोसा है बोले तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इंसान को असबाब भी अख्तियार करना पड़ता है। तो इसी वजह से अल्लाह के नबी ने बुराक को भी वहां पर बांध दिया। उसके बाद जाके आगे बढ़े तो वहां पर हुरों की एक जमात थी, हुरों की एक जमात वहां पर खड़ी हुई थी। तो अल्लाह के नबी ने हुरे आइन को देखने की फरमाइश की, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा वहां पर है, आप जाए, तो आप उनको जाकर सलाम करें। लिहाजा उन्होंने, अल्लाह के नबी ने सलाम किया, उन औरतों ने, जन्नती औरतों ने जवाब दिया। उसके अंदर से हुरे आइन थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम किसके लिए हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जो मोमिन मुसलमान हैं उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हमें तैयार कर रखा है, और हम ना मरने वाली है और ना हम हमेशा कुंवारी रहने वाली है, और हम हमेशा जिंदा रहने वाली है, कभी बूढ़े होने वाली नहीं है। इस तरह हमारी, यानी हूर ने अपनी अपनी जो तारीफ थी वो तमाम तारीफें अल्लाह के नबी के सामने उसने की। तो इस तरह का मामला हुआ। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखा कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे लोग जमा थे। तो बहुत सारे लोग जमा थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़े। वहां पर देखा तो इतने में एक आदमी, किसी आजान देने वाला आजान दिया और इकामत बोलने वाले ने इकामत बोली। उसके बाद सब लोग सफ में खड़े थे। अब सब लोग सफ में खड़े थे तो देखा कि कौन आगे नमाज पढ़ाएगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और तमाम लोगों के लिए नमाज पढ़ाई। तो यहाँ पर उलमा मसला लिखते हैं कि यहाँ पर क्या है, नमाज पढ़ाने वाला कौन है? इमाम है, और पीछे इंतजार करने वाले कौन है? मुक्तदी है। तो मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम का इंतजार करें। इमाम अगर लेट होता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी मिनट अगर लेट होता है तो मुक्तदियों के चाहिए कि इमाम का इंतजार करनी चाहिए। जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार किया है,
تو اسی طرح علماء مقتدیوں کے لیے حق بنتا ہے کہ امام کا آنے کا انتظار کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ امام آتے ہی گھورنا شروع کر دے, کیا اتنا لیٹ ہے, ٹائم کتنے بجے, تمہیں کتنے بجے آتے ہیں, کہیں جیسا نہیں, بلکہ اس کے لیے انتظار کرنا مقتدیوں پر ضروری ہوتا ہے. اس کا حق ہوتا ہے, کوئی بھی انسان ہے, کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو انسان مقتدی مسئلہ یہی ہے کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں معلوم نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت ہے, انبیاء کی جماعت ہے. اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جبرائیل سے کہ یہ کون آدمی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اللہ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے حبیب ہیں. تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا یہی خود جا رہے ہیں یا اللہ ان کو بلا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کو بلا رہا ہے. تو انہوں نے بہت مبارکبادی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد انبیاء سے ملاقات ہوئی. انبیاء علیہ السلام ہر ایک انبیاء نے, ہر ایک نبی نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے اور مجھے خلیل بنایا ہے اور لوگوں کا مجھے پیشوا بنایا ہے. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس کے بعد پھر دوسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کیا, تو ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف عطا کیا اور میرے فرعون کو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو میرے ذریعے نجات دلائی. اور کیا ہے, میری امت میں ایسے لوگوں کو بھی بنایا ہے جو حق کے راستے کی ہدایت رہنمائی کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا اور مجھے کیا ہے میرے زبور عطا فرمائی. اس طرح داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور ہوا پر حکومت عطا فرمائی, شیطان و جنات پر حکومت عطا فرمائی. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس کے بعد کہ اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے عالیشان حکومت عطا کی کہ جس کا مجھے حساب بھی نہیں دینا پڑے گا. ایسی سلطنت اور ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلمت اللہ بنایا اور کیا ہے آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کیا اور مردوں کو میرے ہاتھ سے زندہ کیا اور برس کی بیماری والوں کو, مادرزاد اندھوں کو میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اس طرح کے بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. تو اس طرح تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں نے, تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعریف بتائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے, ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی. اس سے کیا ہوئی وہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آئے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.